students, I am going to teach coordinate geometry. In coordinate geometry, I want to teach section formula and midpoint formula related to some questions. Question: the three vertices of a parallelogram ABCD taken in order are A 3 minus 4, B minus 1 minus 3, and C minus 6 2. Find the coordinates of the fourth vertex D. We make a parallelogram ABCD and A is the coordinate of 3 minus 4, B is the coordinate of minus 1 and minus 3, C is the coordinate of minus 6 2, and let D is the coordinate of AB. Let A 3 minus 4, B minus 1 minus 3, and C minus 6 2 be the three given vertices of a parallelogram ABCD, and its fourth vertex D AB. Join AC and BD. Join AC and BD at O. Join AC and BD. Let AC and BD intersect at the point O. We know that diagonals of a parallelogram bisect each other. हम लोग जानते हैं कि
पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है। इट मीन्स जितना OA होगा उतना OC और जितना OB होगा उतना OD। OA इक्वल टू OC and OB equal to OD. Then we can say that O is the midpoint of AC and BD respectively. Then so O is the midpoint of AC and BD respectively. Midpoint of AC is O और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बताया गया है AC का मिड पॉइंट, देन A इज x1y1 एंड C इज x2y2। तो x1 प्लस x2y2 मिड पॉइंट फॉर्मूला में बताए थे कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए है x1 प्लस x2y2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2y2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। उस मिड पॉइंट फॉर्मूला को हम A के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 करेंगे और B कोऑर्डिनेट x2 y2। देन x1 प्लस x2 मीन्स 3 प्लस माइनस 6 by 2 and y coordinates -4 plus 2 by 2, that is 3 minus 6 minus 3 by 2 and -4 plus 2 minus 2 by 2, that is midpoint O is the coordinate of -3 by 2 and 2 कैंसिल होकर के 1 minus 1। midpoint of BD, midpoint of BD is O और यहां पर भी हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला BD का। यह है x1 y1 और यह है x2 y2। तो -1 प्लस A by 2 एंड y कोऑर्डिनेट -3 प्लस B by 2, that is A minus 1 by 2 and B minus 3 by 2। Now equating, अब हम देखेंगे इसका x कोऑर्डिनेट A minus 1 by 2 है और इस AC का x कोऑर्डिनेट -3 by 2 है। तो A -1 by 2 के इक्वल हम -3 by 2 करेंगे एंड B -3 by 2 के इक्वल -1 करेंगे। देखिए क्या आता है। नाउ A -1 by 2 इक्वल टू -3 by 2 एंड B -3 by 2 इक्वल टू -1। A2 will be cancel, तो A इक्वल टू -3 और यह -1 राइट साइड में आएगा तो +1 और -3 + 1 इक्वल टू
-2 एंड b -3, यहाँ 2 डिवाइड में है तो 2 जब राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। -1 इंटू 2 विच इंप्लाई b इक्वल टू -3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 2 इंटू -1 -2 एंड -3 जाकर के +3 होगा तो 3 - 2 इक्वल टू 1। Hence the fourth vertex of a parallelogram ABCD is D। A का वैल्यू आपका -2 आया, यहाँ -2 और B द वैल्यू ऑफ 1 -2 एंड 1। तो इस तरह से आपका फोर्थ वर्टेक्स फाइंड हो जाएगा। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है और फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है तो यहां पर इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, let D 3 - 2 E -3 1 and F 4 - 3 be the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively। Of triangle ABC। Then find the coordinates of the vertices A, B and C। Now in solution, draw a triangle ABC
ABC, देखिए यहां साइड BC है, BC का मिड पॉइंट D है, CA का मिड पॉइंट आपका E है और AB का मिड पॉइंट F है। और D is the coordinates of 3 minus 2, E is the coordinate of minus 3 1, and F is the coordinate of 4 minus 3, 4 minus 3, A is the coordinate of, let A is the coordinate of x1 y1, B is the coordinate of x2 y2, and C is the coordinate of x3 y3. Now write, let A is the coordinate of x1 y1, B is the coordinate of x2 y2, and C is the coordinate of x3 y3. Be the vertices of triangle ABC, and let D 3 minus 2, यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, E minus 3 1, and F 4 minus 3 be the midpoints of BC, CA and AB respectively. तो जो मैंने लेट किया ABC वर्टेक्स का x1 y1, B है x2 y2 और C x3 y3, और मिड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट 3 minus 2, E is the coordinate of 3 minus 3 1, and F is the coordinate of 4 and minus 3. तो यहां पर हम D is the मिड पॉइंट ऑफ BC देख रहे हैं, यह मिड पॉइंट है, तो यहां पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, तो x2 प्लस x3 बाई 2 D, x2 प्लस x3 बाई 2 x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 प्लस y3 बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, यह x हो गया और यह y हो गया, ये y इक्वल टू हो गया। तो x कोऑर्डिनेट का मतलब x का वैल्यू D पर देखिए, x का वैल्यू 3 है, तो यहां लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, then x2 plus x3 बाई 2 इक्वल टू, x का वैल्यू कितना है, यहां D का देखिए 3 है, तो इसके इक्वल आपका 3 लिखेंगे, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का हो रहा है। और y कोऑर्डिनेट पर चले तो y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट कितना है D पर, -2 है, यहां -2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x2 प्लस x3 ये दो डिवाइड में है, तो यहां राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा,
मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। अब y कोऑर्डिनेट पर लेके चले तो y2 प्लस y3 इक्वल टू y2 प्लस y3 इक्वल टू 2 इंटू -2 -4, इक्वेशन 2। इसी तरह से हम मिड पॉइंट ई का इक्वेशन बनाएंगे, मिड पॉइंट एफ का इक्वेशन बनाएंगे और इसके बाद x1, x2, x3 का वैल्यू निकल जाएगा और y1, y2 और y3 का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहां पर हम E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E is the midpoint of AC. Then अब वहां पर चले AC E पर चले, AC साइड में, तो यह x का वैल्यू है, y का है और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू -3, x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू -3 एंड y कोऑर्डिनेट ले तो y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है 1। नाउ सोल्व x1 प्लस x3 इक्वल टू -3 इंटू 2 -6 and y1 plus y3 equal to 2 into 1, 2 into 1 that is 2। now equation third and equation 4। similarly F is the midpoint of AB, F is the midpoint of AB, F is the midpoint of AB। then यहां पर देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 4, which implies x1 plus x2 equal to 4 into 2 8, equation 5 and y कोऑर्डिनेट पे चलेंगे तो y1 plus y2, y कोऑर्डिनेट पर y1 plus y2 by 2 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है यहां f का -3, which implies y1 plus y2 equal to -3 into 2 -6, -3 into 2 -6, this equation 6। now adding इक्वेशन फर्स्ट में देखिए x2 प्लस x3 है, थर्ड में आपका x1 प्लस x3 है और फोर्थ में x1 प्लस x2 है। इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड 5 we get तो यहां पर सेकंड देखें, फर्स्ट देखें x2 प्लस x3, इसके बाद थर्ड इक्वेशन
x1 प्लस x3 और इसके बाद 5 इक्वेशन x1 प्लस x2 लेफ्ट साइड ऐड हो गया। अब राइट साइड में चले तो फर्स्ट में है आपका 6 प्लस थर्ड में -6 प्लस 5 में है आपका 8। ये -6 से +6 में कैंसिल हो गया। और यहां पर देखें तो x1 डबल है, x2 भी आपका 2 है, x3 भी डबल है, तो 2x1 2x2 एंड 2x3 हो जाएगा। और 2 जब कॉमन लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 8। इसके बाद यहां देखें x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 8/2। यहां 2 मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा और 2 4 जा 8 which implies x1 plus x2 plus x3 equal to 4. Equation number 7. Now adding अब y1 बचेगा adding 2 4 and 6 equation 2 4 and 6। तो 2 इक्वेशन है y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस 4 में आए तो y1 प्लस y3 प्लस 6 में आए तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 का राइट साइड -4 प्लस 6 4 का राइट साइड है 4 का राइट साइड 2 प्लस 6 का राइट साइड है -6 और यहां से 2 y1 है 2 y2 है। देखिए y2 डबल y1 डबल y3 डबल 2 कॉमन y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू -6 प्लस -4 -10 एंड +2 which implies y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू -10 प्लस 2 -8 और 2 यहां मल्टीप्लाई में है 2 यहां मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा 2 4 जा 8 और y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू -4 इक्वेशन नंबर 8। ये 8 इक्वेशन बन गया। अब देखिए आप फर्स्ट में देखिए x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 है x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 है। आप यूज करेंगे यूज क्या करेंगे सो देखिए आपका 6 और 7
7 और 8 दो इक्वेशन बने, तो यूजिंग सेकेंड 4 पहले एक्स वाला निकाल ले। एक्स वाला निकालने के लिए यूजिंग फर्स्ट के बाद एक्स है कहां, थर्ड में है, थर्ड फर्स्ट थर्ड एंड 5 में आपका है, 5 में देखिए x1 x2 है, विथ 7 इक्वेशन 7 वी गेट, तो 7 इक्वेशन आपका है, 7 इक्वेशन देखिए यहां बना हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, विच इम्प्लाई, अब फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x2 प्लस x3 का वैल्यू 6 है, x2 प्लस x3 का वैल्यू 6 है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 के जगह पर 6 रखेंगे इक्वल टू 4, विच इम्प्लाई x1 इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू -2, तो x1 का वैल्यू -2 आ गया। फिर नेक्स्ट चले x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट के बाद हम आएंगे थर्ड में x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 का वैल्यू कितना रखना है, -6 प्लस x1 प्लस x3 का वैल्यू -6 एंड प्लस x2 इक्वल टू 4, विच इम्प्लाई x2 इक्वल टू 4, ये -6 राइट साइड में जाएगा तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, यहां पर लिख दें x2 इक्वल टू 10 हो गया, यहां x1 इक्वल टू -2, और नेक्स्ट 7 देखें, 7 इक्वेशन में x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, तो अब हम 5 इक्वेशन देखें, 5 में क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 8, x1 प्लस x2 इक्वल टू 8 प्लस x3 इक्वल टू 4, विच इम्प्लाई x3 इक्वल टू 4 माइनस 8, और 4 माइनस 8 इक्वल टू -4, विच इम्प्लाई x3 इक्वल टू -4, -2 x1 आ गया, x2 आपका 10 आ गया और x3 आपका -4 आ गया। इसके बाद अब हम चलेंगे y1, y2 एंड y3 निकालने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 8 में आना होगा, इक्वेशन नंबर 8, तो इक्वेशन नंबर 8 यूजिंग सेकेंड के बाद है आपका y1 4 में है, 4 एंड इसके बाद y का कोऑर्डिनेट है 6 में, तो 6 विथ 8 इक्वेशन 8 वी गेट तो y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू आपको आया हुआ है -4, अब यहां हम सेकेंड में देखें y2 प्लस y3 आपका -4 है, तो y1 प्लस y2 और y3 का वैल्यू क्या रखेंगे, -4 इक्वल टू -4, विच इम्प्लाई
y1 इक्वल टू -4, या -4 राइट साइड में जाएगा तो +4 और -4 + 4 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई y1 इक्वल टू 0। A2 हो गया। 4 इक्वेशन देखिए, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में आपका y1, यहां पहले 8 लिखेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू -4, और 4 से y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 है, y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 प्लस y1 प्लस y3 इक्वल टू 2, देन y2 2 प्लस y1 प्लस y3 का वैल्यू 2 रख दिए, प्लस y2 इक्वल टू -4, विच इम्प्लाई y2 इक्वल टू -4 प्लस 2 जाएगा राइट साइड में, -2 इक्वल टू -6, विच इम्प्लाई y2 इक्वल टू -6। अगेन अब y3 निकालना है, तो नाउ 8, इक्वेशन नंबर 8, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू -4। अब यहां इक्वेशन 6 को देखिए, इक्वेशन 6 तो 6 में आपका y1 प्लस y3 इक्वल टू -6 है, यहां पर y1 प्लस y2 के जगह पर -6 रखेंगे और प्लस y3 इक्वल टू -4, विच इम्प्लाई y3 इक्वल टू -4, ये -6 राइट साइड में जाएगा तो +6, और -4 + 6 इक्वल टू 6 - 4 2, विच इम्प्लाई y3 इक्वल टू 2। तो x1 यहां देखिए, x1 x2 x3 तीनों निकल गया, यहां से देखिए y1 y2 एंड y3 निकल गया। अब नाउ वी राइट हेंस द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC आर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, x1 है आपका -2 एंड y1 है 0, B का कोऑर्डिनेट x2 आपका दिया हुआ है 10 एंड y2 हो गया आपका -6 and C is the vertex of C x3 -4 and y3 2। तो तीनों वर्टेक्स का आपका वर्टेक्स निकल गया, तीनों वर्टिसेज आपका फाइंड हो गया ट्रायंगल का A B एंड C। A हो गया -2 0, B हो गया 10 - 6 एंड C हो गया -4 एंड 2।